Hello and welcome. Today we have with us Dr. Balaraja Shekhar, who is a senior consultant, neuro and spine surgery. He specializes in endoscopic brain surgery and spine surgery. Welcome to our show, sir. Good evening. Namaste. So, I am Balraj Shekhar Chandra. I am a senior consultant endoscopic spine and brain surgeon. I work basically in Yashoda Hospital, High Tech City, which is a big hospital chain in Hyderabad. So, I've been coming to Assam and Guwahati from 1 to 1.5 year now. So, I've been seeing many patients from Assam. I've been treating them. So, it's always pleasure for me to come here and interact with the people of Assam. So, sir, the very first thing which I would like to ask you, so why specifically a complex field like neurosurgery? Exactly. So when I did basically my surgery training and neurosurgery training from PGH Chandigarh, which is one of the best institutes in India. Okay. So that time I went to general surgery. So my posting went into neurosurgery. So I thought the neurosurgery is really a branch where you can make difference in people's lives. So when I started neurosurgery, or little before me, the neurosurgery was a dreading branch, a frightening branch for the people. So they used to feel that the neurosurgery patients will be sick, they will be on ventilator, they cannot survive and all. So with the advanced technology, so that gives you satisfaction. This is a challenging branch, so there is no space here in brain or the spine. So you really make difference in people's lives, and it's difficult. And yeah, for a surgeon, for the neurosurgeon especially, it is very difficult and mentally and physically stressful job. But yes, it gives you much more satisfaction that you have made differences in people's lives. Yeah. So, as you have been connected with neurosurgical field for a very long time, so did you notice what are the neurological advancement that you have noticed in this field and the kind of advancement in the patient care as well? So if I see from where the neurosurgery is transforming from the patient's perspective, अभी patients के नज़रियों से देखेंगे तो फिर पहले ऐसा होता था कि एक बार न्यूरोसर्जरी का प्रॉब्लम हो गया तो फिर वो तो बाहर नहीं आएगा, ये तो जाने वाला है, या कुछ प्रॉब्लम तो परमानेंटली रह जाएगा. बट नाउ विद द एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी, सर्जिकल एडवांसमेंट बोल दीजिए और एक्सपर्टाइज इन सर्जिकल फील्ड बोल दीजिए, सर्जन्स के एक्सपर्टाइज एंड इक्विपमेंट एक्सपर्टाइज, एंड द वे वी आर बूमिंग इन हेल्थ केयर, स्पेशली इफ यू सी इन इंडिया as a country has come a long way. अभी देखेंगे तो especially in Hyderabad, if I see Yashoda, so many people from other African countries come to us for treatment, क्योंकि इधर का जो एडवांसमेंट है विथ लेस कॉस्ट वी आर एबल टू कैटर टू द पीपल. एंड ये भी होता है कि जो भारतीय लोग हैं एंड कुछ लोग हु आर सेटल्ड इन यूरोप एंड अमेरिका, आई एम नॉट एग्जैगरेटिंग, कुछ लोग बोल सकते हैं ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं है, तो जो लोग अमेरिका, यूएस एंड ब्रिटेन वगैरह में सेटल हुए हैं वो लोग भी इधर आके हमसे सर्जरी करा के जाते हैं, क्योंकि देयर आर मेनी फैक्टर्स, बिकॉज वेटिंग लिस्ट उधर ज़्यादा होता है एंड सर्जिकल एक्सपर्टीज हमारा अच्छा है एंड इक्विपमेंट्स तो इधर उधर के बराबर है एंड better भी है. In technical person who run these, they are better, and surgeons are definitely better. So we come a long way. So patient expectation अभी कैसा हो रहा है, जैसा मैंने पहले बोला था, एक बार न्यूरोसर्जरी पेशेंट गया तो फिर जिंदा है तो बहुत है, this if he is alive that's a big thing, वैसे सोचते थे. Now the patient's expectations are different. See, ये जैसा जा रहा है उससे बेटर ही आना है, there should be no deficit. एंड साइंस भी ऐसा ही एवॉल्व हुआ है, ऐसा नहीं है दे आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ द ब्लू, ऐसे एक्सपेक्टेशंस ऐसा नहीं बनते ना. सो इफ दे सी द पीपल अराउंड, आजकल तो एवरीथिंग इज अवेलेबल इन सोशल मीडिया, सो दे नो द थिंग्स व्हाट आर हैपनिंग. सो फॉर एग्जांपल अभी देखिए जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, कुछ ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं जो मोटर कॉर्टेक्स ब्रेन का देखेंगे स्ट्रक्चर कि अलग अलग एरियाज अलग अलग चीज़ें कंट्रोल करते हैं ब्रेन का, जो पैरालिसिस आता है कुछ चीज़ों में डैमेज होने से. कुछ ट्यूमर्स होते हैं ब्रेन का मोटर कॉर्टेक्स बोलते हैं, जहाँ आप हाथ पैर वगैरह कंट्रोल करता है, उसी एरिया में होता है ब्रेन ट्यूमर. सो पहले ज़माने में क्या होता था, ब्लाइंडली जाते थे, यदि ऐसा निकालने से परमानेंटली पैरालिसिस आने का रिस्क रहता था. सो दिस फॉर ओनली एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ एडवांसमेंट का किस्सा. सो अभी क्या है, हम ऐसे लोगों में वी डू नर्व मॉनिटरिंग एंड पेशेंट को कॉन्शियस रख के ब्रेन ट्यूमर करते हैं. जैसा हम सर्जरी करते रहते हैं, ब्रेन ट्यूमर निकालते रहते हैं, वो पेशेंट हमसे बात करता रहता है, हम बोलते हैं उसको पैर हिलाओ, हाथ हिलाओ, सो वो सब देखते हुए करते हैं. सो देयर इज नो चांस दैट डेफिसिट विल कम, नया डेफिसिट आने का, कोई पैरालिसिस होने का चांस ही नहीं है. सो इतना तक एवॉल्व हुआ है साइंस. इट इज़ कॉल्ड अवेक क्रेनियोटॉमी एंड कॉन्शियस सर्जरी. सो वी डिड मेनी थिंग्स लाइक दिस. सो ट्यूमर जहाँ क्रिटिकल एरियाज में ब्रेन में होते हैं, सो पेशेंट को रख के कॉन्शियस रख के एनेस्थीसिया देखिए, एनेस्थीसिया में रहेगा पेशेंट को दर्द महसूस नहीं होगा लेकिन हमसे बात करता रहेगा.
बात करते रहे, हम मुझसे पूछते रहेंगे, हाथ हिलाओ, पैर हिलाओ, गाना गाओ, उसको टीवी में क्रिकेट मैच, उसका जो भी पसंद की चीज़ होता है, मूवी होता है मूवी, वो दिखाते रहेंगे, उससे पूछते रहेंगे क्या आप देख रहे हैं. सो एंड सच थिंग्स. एंड एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी देखिए फॉर एग्जांपल. सो स्पाइन का डिस्क जो होता है उसको निकालते वक्त पेशेंट से पूछते रहते हैं, हाथ हिलाओ, पैर हिलाओ, पूरा कॉन्शियस रहता है. सो जो स्पाइन का होने दीजिए एंड ब्रेन का होने दीजिए, साइंस हैज़ एडवांस सो मच एंड वी आर एक्सपीरियंस इन दीज थिंग्स. सो हम इसमें स्पेशलाइज हुए, ट्रेनिंग हुए एंड बहुत लोगों में करके, सो वी आर एबल टू गिव गुड रिजल्ट्स टू द पेशेंट्स. So, sir, first then we'll talk about the spinal surgery. Okay, so sir, अभी देखने को मिल रहा है कि like very young, at a very young age, people are having spine problems. So, like, why is it so? Is it because of the modern technological living way? Like, what do you think? सो यदि इस मुद्दे पे हम बात करेंगे तो ऐसा है कि जैसा पहले भी देखते थे, जिसको भी बैक पेन होता है तो फिर वो किसको होता था, बुजुर्गों को होता था. सो बिकॉज ऑफ एज. बट वो बैरियर अभी चला गया. अभी बच्चों में भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है. पेशेंट प्रोफाइल मतलब जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट लेकिन स्पाइन प्रॉब्लम सुनना भी नहीं होता था पहले से. जैसा हमारा एज में 20-30 ईयर्स के टाइम एज में कि कोई बोलता है बैक पेन होता है तो फिर उसका मजाक उड़ाते थे, बूढ़ा बन गया, ऐसे ही बोल रहा है. तो अभी वो मसला नहीं है. अभी बच्चों में भी यू कैन सी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन में भी बैक पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है. क्या रीज़न है इसका? मेन थिंग इज लाइफस्टाइल चेंज. अभी हम देखेंगे देर इज़ ए पैराडिग्म शिफ्ट इन द वे वी आर वर्किंग. अभी आई हैड बीन सीइंग दिस फ्रॉम 2020 ईयर्स में. ऐसा हमारा जो जीने का शैली होता है, जो द वे वी आर लिविंग, इट हैज़ चेंज्ड ए लॉट. जैसा देख लीजिए पहले का क्या होता था. सो हार्ड वर्क होता था, वो मेहनती वाला काम, शारीरिक मेहनती वाला काम होता था. बट अभी तो कोई नहीं कर रहा. बिकॉज नहीं कर रहे मीन्स आई डोंट मिसकोट मी, नहीं कर रहे बोले तो द वर्क हैज़ चेंज्ड. बिकॉज आजकल ये नहीं है कि आप काम करते रहेंगे धूप में, यार इट्स नॉट रिक्वायर्ड. सो यू हैव टू सिट बिफोर द सिस्टम, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू रीड. एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट इज हैपनिंग, एक्सरसाइज भी हमारा जीवन से धीरे 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 निकल गया. बिकॉज एक्सरसाइज, वो जो व्यायाम होता था, इट यूज टू बी ए पार्ट ऑफ योर लाइफ. आप चल के जाते थे, उधर भी मेहनत करते थे, वो आपका ज़िंदगी में एक हिस्सा होता था. बट लेकिन अभी जो एडवांसमेंट्स की वजह से, जो काम करने का तरीका बदलने की वजह से, धीरे धीरे जो एक्सरसाइज जो है, फिजिकल एक्सरसाइज जो है, हमारा जीवन से वो निकल गया है. से फर्स्ट पॉइंट. द सेकेंड पॉइंट, खाने का तरीका. अभी आप देखेंगे तो बहुत खाना हो रहा है, स्पेशली बच्चों में. बच्चों में ओबेसिटी होना तो दिट वॉज अनहर्ड ऑफ थिंग बिफोर. आप पहले देखे होते तो एक क्लास में बहुत लोग पतले होते थे, एक और दो मोटे होते थे. आजकल रिवर्स हो गया. सो बहुत लोग मोटे होते हैं, एक दो पतले होते हैं. बिकॉज व्हाट इज दिस? बिकॉज बच्चे भी खेलना बंद कर दिए. बच्चों को भी खेल भी क्या होता है, वीडियो गेम्स होते हैं, मोबाइल होता है. सो बच्चा रोने लगता है तो माँ बाप क्या करते हैं, मोबाइल देख, तुम चले जाओ, मोबाइल देखो, अपना मस्ती करो. सो वीडियो गेम्स खेलते हैं, दे प्ले द गेम्स. अभी जो ये खेल रहा है, सिस्टम में खेल रहा है, एंड बाहर जो उसका शारीरिक वो नहीं हो रहा है, इज़ नॉट हैपनिंग. सो इसकी वजह से क्या होता है, ग्रेजुअली जब वो सिस्टम के सामने बैठता है, वो खामोश तो बैठ नहीं सकता. क्या करता है, जंक फूड लेना शुरू करता है. सो नो फिजिकल एक्टिविटी एंड जंक फूड, दोनों की वजह से क्या होता है, ओबेसिटी होता है. ओबेसिटी में क्या होता है, फैट डिपोजिशन इन द बॉडी. सो मसल स्ट्रेंथ कम होता है बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग. एंड द फूड वी ईट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, क्या खाना खाते हैं लोग. सो नॉर्मली दे डोंट ईट प्रोटीन फूड एंड ऑल, दे ईट ऑल दिस रिफाइंड शुगर फूड्स. उससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट होके एंड यू गेट फैट मोर इन द बॉडी. नो प्रोटीन, नो मसल मास एंड मोर फैट, एंड योर वीक बॉडी इज हैविंग टू बेयर मोर वेट. आपका शारीरिक दृढ़ता नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा वजन आपके शरीर को आपको झेलना पड़ रहा है. सो व्हाट हैपन्स, सो इसका वेट कहीं ना कहीं पड़ेगा. तो कहाँ पड़ेगा, स्पाइन के ऊपर ही पड़ेगा. स्पाइन जो है, वो जो फ्रेमवर्क है हमारा पूरा बॉडी का, वजन वो भरता है, वो उसको खड़ा करता है बॉडी को. सो उसके ऊपर पूरा वजन गिर रहा है. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, दे आर गेटिंग डिस्क प्रोलैप्सेस and all these things at a very young age. And थोड़ा young age में आएंगे तो, and again the same thing, obesity and speed travels, 2-wheeler journey होने दीजिए,
फोर व्हीलर जर्नी होती है, बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र करना पड़ता है एंड सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस एंड ऑल दिस थिंग्स एंड अलॉन्ग विद द स्ट्रेस, जैसे बच्चे खाना खा के उसका स्ट्रेस निकालते हैं, थोड़ा बड़े लोग क्या करते हैं स्ट्रेस निकालने के लिए, दे गो विथ अल्कोहल एंड स्मोकिंग। द स्मोकिंग जो है एंड उसका बोन हेल्थ को बहुत ख़राब करता है एंड स्पेशली स्पाइन हेल्थ को बहुत ख़राब करता है। स्मोकिंग, excessive alcohol consumption, lack of exercise and sitting jobs and obesity, all these things are playing a very vital role in the way our spine is getting damaged these days. So we are not our population, our younger generation is not as healthy as it was before. So मेरा दादा परदादा होते थे तो उतना स्ट्रेंथ हमें नहीं है, हमारा जो बच्चे हैं उसमें तो हमारा स्ट्रेंथ जितना है वो भी नहीं है एंड दिस शुड नॉट गो लाइक दिस, दिस शुड बी एन एंड पॉइंट। इसका जो एजुकेशन है वो बहुत अर्ली स्टेज से बच्चों में शुरू होना चाहिए एंड द पेरेंट्स, अभी बच्चों का मैं बोलता हूँ ये बच्चों का मोबाइल का एडिक्शन कहाँ से शुरू होता है, लेस देन 1 ईयर ऑफ एज। वो जब बच्चा खाने के लिए रोने लगते हैं, माँ बाप क्या करते हैं उसको मोबाइल पकड़ाते हैं, मोबाइल पकड़ा के उसको खाना खिलाते हैं। पहले क्या होता था, चंद्रमामा का दिखा के उसका कहानी सुनाते थे या उस घर में घुमाते घुमाते खिलाते थे। अभी किसी के पास इतना टाइम नहीं है तो फिर क्या, मोबाइल पकड़ा दिया, उसको खाना ठूस दिया, कितना खा रहा है वो नहीं पता उसको, मोबाइल देखता रहता है, अम्मा जितना भी खिलाएगा वो खा लेगा, सो ओबेसिटी हो जाता रहता है। सो दिस शुड स्टॉप एट दैट स्टेज। सो मोबाइल दिखा के खाना खिलाने वाली बात खत्म होना चाहिए एंड बच्चों को यू शुड एंकरेज, अरे बच्चा जाओ खेलो, जो भी क्रिकेट खेलोगे खेलो, जो भी खेलो, बट मोबाइल में नहीं खेलना है एंड कीप द चिल्ड्रन अवे फ्रॉम द मोबाइल एंड एंकरेज देम टू प्ले गुड एंड जो जितना भी रोए डोंट गिव देम जंक फूड। एंड दिस इज़ अनदर थिंग, आजकल ये स्विगी जोमेटो आने के बाद उसको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका जो ये है ना पेटीएम, उसके पास है कोड, ठीक है वो ऑर्डर कर सकता है, घर का आ जाता है, अम्मा अब्बा को तो पता नहीं लगता है वो खाना आया है, ये खा लेगा, है ना। सो अम्मा अब्बा को भी उसका टाइम नहीं है खाना बनाने के लिए, तो क्या कर रहे हैं, दे आर एंकरेज, ठीक है ना बच्चा है ना, भूख है ना बेचारा, खाने दो। सो ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट लाइक दैट। सो यू गिव देम प्रॉपर फूड, इफ़ यू कांट कुक no problem, let them cook by themselves at this engage so first you should inculcate healthy habits, tell them what is good what is bad, taste is not always good thing। so food tasty है इसका मतलब ये नहीं है वो healthy है, ठीक है। so आजकल जहर भी tasty है, so tasty food is not a healthy food। concentrate on what you eat and what your children are eating। so this is because our India is the one of the countries is the youngest population which has the youngest population। so Indian subcontinent में जो है सबसे जवान जो जनरेशन है वो इधर ही है, क्योंकि फर्टिलिटी रेट जो बच्चे हैं इधर ही ज़्यादा है। so this is the productive population, ये लोग आके जाके हमारा देश को आगे ले जाएंगे। so ऐसा जनरेशन वीक होता है तो we are not going anywhere। so we should encourage healthy generation and stronger generation। So like sir, for spinal problems, when should a patient decide? Like either he should go for physiotherapy or surgery. Like what's that extreme limit? This is again a good question। so जैसे बैक नॉर्मली क्या स्पाइन प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बैक पेन एंड नेक पेन। सो सब लोग यही मानना है कि यदि बैक पेन हो गया, नेक पेन हो गया तो वो सोचते हैं ज़िंदगी ख़त्म हो गया। सो उसके बाद क्या करते हैं, गूगल करते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो सर्जरी करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, डर जाते हैं एंड दे गो टू मेनी अदर प्लेसेस विच आर नॉट एडवाइज्ड। एंड फिजियोथेरेपी, आप बोले फिजियोथेरेपी एडवाइजेबल है बट लेकिन उसका भी एक होता है। सो व्हेन इज ए बैक पेन और नेक पेन सीवियर, व्हेन इज इट नॉट। सो जैसा मसल पेन, जो आप स्पाइन का आर्किटेक्चर देखेंगे, जो भी बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो आप स्पाइन कॉलम, ऐसा स्पाइन एक बोन नहीं है, जैसा ये हाथ का बोन है, ये जॉइंट्स में जुड़ते हैं, बाकी एक पूरा हड्डी होता है। स्पाइन में ऐसा नहीं है, स्पाइन जो हड्डियों का एक माला है, जो स्मॉल पीसेस एक कॉलम जैसा बनते हैं, माला है। सो वो उसको जोड़ने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं, उसके जो बोन्स का पीसेस होते हैं उसके बीच में लिगमेंट्स होते हैं, मसल्स उसको पकड़ते हैं एंड ये जो बोन के बीच में एक डिस्क बोल के स्ट्रक्चर होता है विच विल एक्ट एज ए शॉक अब्जॉर्बर इन बिटवीन टू बोन्स। सो ये सब आर्किटेक्चर हमारे स्पाइन को बरकरार बना रखते हैं। तो इसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो गया, सो द सेकेंड स्ट्रक्चर हैज़ टू टेक मोर वेट। सो ये सब ऐसे अपने हिसाब से चलते रहते, एक कमज़ोर हो गया तो दूसरे के ऊपर उसका बोझ पड़ेगा। सो देन यू स्टार्ट हैविंग
back pain and all. So first common symptom, early symptom is the back pain and spasm. आप नोटिस करते हैं तो यदि पेन होने वाला हिल भी नहीं पाते, ये क्यों नहीं पाते? क्योंकि वो मसल स्पैज़म में चला जाता है. सो दिस इज़ द वे हाउ योर ब्रेन अंडरस्टैंड्स. सो ये इसका वजन ज़्यादा हो गया, ये पेन वो हिलने से वो नस को टच करता है और पेन ज़्यादा हो जाता है, तो हिलने से इसको रोकना है तो क्या करता है, मसल को टाइट कर देता है. दिस इज कॉल्ड मसल स्पैज़म. दैट इज इन इनिशियल स्टेज. सो ये मसल स्पैज़म्स एट दिस स्टेज यू कैन रेक्टिफाई इट. सो व्हाट इज हैपनिंग, वाई इज इट हैपनिंग? सो डॉक्टर को कंसल्ट किया तो इन्वेस्टिगेशंस कराते, इधर एक्सरे होने दीजिए या MRI होने दीजिए, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल एग्जामिनेशन. देन यू चेंज योर लाइफ स्टाइल, डू एक्सरसाइजेस, एंड देन इन 95% ऑफ द पीपल इधर हम ये प्रॉब्लम को रोक सकते हैं. बट उसका आगे जाके क्या हो सकता है? सो इफ देर इज अ सीवियर बैक पेन अलॉन्ग विथ रेडिकुलर सिम्टम्स बोलते हैं, मतलब जैसा स्पाइन का मेन नर्व होता है उधर से ब्रांचेस होके हाथ में, पैर में, ये सब स्ट्रक्चर्स को उधर से निकल के सप्लाई करते हैं. सो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो गया, उसके ऊपर दबाव होके वो नस जहाँ तक जाता है उधर दर्द आपको महसूस हो सकते हैं. इसको रेडिकुलोपैथी बोलते हैं. मतलब जैसा समझ लीजिए नेक में एक लेवल में कंप्रेशन हो गया, जो नस जहाँ तक जा रहा है वो खींचता है, हाथ खींचता है. जैसा बैक पेन, लो बैक पेन में हो गया था सायाटिक पेन, सायाटिका बोलते हैं, जो पैर खींचता है. सो दीज आर कॉल्ड रेडिकुलर सिम्टम्स. इसका यही मतलब है कि वो नस जो है वो इरिटेट हो रहा है. सो नस को कुछ तो प्रेस कर रहा है. सो एट दिस स्टेज लिटिल एडवांस, मतलब इस थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ रहा है, मतलब सो उसको भी देखना होता है व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन फॉर दिस कंप्रेशन. मोस्ट कॉमनली होता है यंग पीपल में डिस्क प्रोलैप्स, जो मैंने पहले बताया था. सो बोन्स के बीच में डिस्क होता है, वो बाहर अपना सीमा पार करके बाहर आता है एंड नस को दबाता है. नस को दबाने से वो जो इरिटेट होता है एंड इट विल कम एज झंझनाहट या दर्द, जलन. सो डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं. सो उसकी वजह से क्या होता है, इफ द रेडिकुलर पेन इज़ वेरी सीवियर एंड उन लोगों में भी, बहुत लोगों में मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी से बहुत लोग ठीक हो जाते हैं. ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत लोगों में ठीक नहीं हो रहा है. एंड देन दे आर हैविंग डेफिसिट यानी वो जो नस डैमेज होने लगता है धीरे धीरे एंड जो मसल को सप्लाई करता है वो वीक होने लगता है. मतलब हैंड ग्रिप वीकनेस हो जाना, एंड लो बैक में होता है तो पाँव में कमज़ोरी आ जाना, मसल कमज़ोर हो जाना. सो ऐसा होने लगता है. देन दैट इज़ एन एडवांस स्टेज. देन उसको उसके ऊपर जो प्रेशर है उसको निकालना पड़ता है. देन वी गो विथ सर्जिकल ऑप्शंस. एनी डेफिसिट्स एंड मतलब वो सेंसेशन लॉस होने दीजिए, मोटर डेफिसिट होने दीजिए. कुछ लोगों में जैसे सर्विकल स्पाइन में या लो बैक में पेशाब में रुकावट आना, सो दे विल बी हैविंग डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन. सो वैसे सिम्टम्स आते हैं तो सर्जरी इमीडिएटली करना होता है. अदरवाइज बहुत लोगों में वी डोंट एडवाइज इमीडिएट सर्जरी. सो उसको क्या, बट लेकिन फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू फाइंड द रीज़न, ये क्यों हो रहा है. सो एंड द फर्स्ट पॉइंट यू टोल्ड फिजियोथेरेपी. सो विदाउट फाइंडिंग रीज़न इफ़ यू गो टू फिजियोथेरेपी, कुछ लोगों में प्रॉब्लम बिगड़ भी सकता है. स्पेशली इफ आई से द डिस्क फ्लैप्स इज़ वेरी बिग कॉजिंग नैरो कंप्रेशन, उसको रेस्ट दिए बिना आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर लेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे, वो डिस्क फ्लैप्स और बढ़ के प्रॉब्लम बढ़ सकता है एंड प्रॉब्लम बिगड़ भी सकता है. सो यू हैव टू फाइंड what is the reason, what is happening. So then we have to tailor the management accordingly. So medical management करना है या मेडिसिन के साथ रेस्ट लेना है या मेडिसिन के साथ फिजियोथेरेपी करना है या फिजियोथेरेपी एंड मेडिसिन काम नहीं करेंगे सर्जरी करना है. सो वो सब देख के डिसाइड करना होता है. तो फिर आपका ये एज यू सेड यू आर रिलेटेड विद एंडोस्कोपिक स्पाइनल सर्जरी एज वेल. सो फिर ये आपका एंडोस्कोपिक स्पाइनल सर्जरी व्हाट्स द प्रोसेस, ये आपको कैसे वो प्रोसेस होता है? जैसा हम बात कर रहे थे, बहुत लोगों में 95% लोगों में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ता है. सर्जरी जिनमें ज़रूरत पड़ता है उसमें क्या प्रॉब्लम होता था. फर्स्ट आप देखेंगे इनिशियली, सो वी यूज्ड टू हैव बिग कट करके मसल को स्पाइन बोन से सेपरेट करके लैमिनेक्टमी बोलते हैं. बोन का थोड़ा हिस्सा निकाल के डिस्क निकालना या स्क्रू रॉड डालना वगैरह करते थे. तो उससे क्या होता है, स्पेशली यंगर पॉपुलेशन में, सो उनको जल्दी काम में ज्वाइन होना नहीं होता है, रेस्ट ज़्यादा लेने की ज़रूरत पड़ सकता है. एंड वो मसल को स्प्लिट करने से क्या होता है, थोड़ा मसल वीकनेस हो सकता है. सो ऑल दिस प्रॉब्लम्स होते थे पहले. बट लेकिन क्या है, एंड बिकॉज वाई एंडोस्कोपिक सर्जरी करना है ज़रूरत क्यों? क्योंकि पेशेंट प्रोफाइल जो जैसा हम
अभी से बात कर रहे थे, पेशेंट प्रोफाइल ही बदल गया है. सो इट इज़ कमिंग इन यंग पीपल, इज़ नॉट लाइक 60-70 में आ रहा है प्रॉब्लम. सो 20, 30, 35, 40 ऐसे लोगों में आ रहा है. सो इनका क्या है, इनका डिमांड एक है, काम करना है, तभी तो इनका ज़िंदगी चलता है. तो जल्दी, जितना जल्दी काम करे उतना बेटर होता है. तो वैसा लोगों में ओपन सर्जरी में ये थोड़ा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ओपन सर्जरी वेरी बैड सर्जरी, नहीं, इट इज़ ए गुड सर्जरी, बट लेकिन उससे भी बेटर क्या है, सो विच विल एंकरेज देम टू गो टू वर्क नॉर्मली एंड मिनिमल. इनका ज़िंदगी आगे बहुत बड़ा है, तो इसका जो डैमेज है वो नहीं होना, मसल डैमेज या बोन डैमेज. तब आता है एंडोस्कोपी. एंडोस्कोपी में क्या करते हैं आप देखेंगे तो एंडोस्कोप पूरा जो बिगेस्ट एंडोस्कोप का जो डायमेंशन होता है 6 to 7 मिलीमीटर्स या 1 सेंटीमीटर से कम. तो इस लोगों में वी डोंट स्प्लिट मसल और एनीथिंग, वी जस्ट डायरेक्टली थ्रू ए स्कोप, उसका इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, गाइड वायर वगैरह, नीडल वगैरह जाके गाइड वायर डाल के, डायलेटर डाल के, वी डोंट कट द मसल, वी गो थ्रू द मसल. वो जैसा स्प्ले करके जाते हैं एंड देन वी पुट ए स्कोप देयर एंड देन वॉट एवर किसकी वजह से प्रॉब्लम, मतलब समझ लीजिए डिस्क की वजह से हो रहा है, वो डिस्क निकाल के वापस आ जाते हैं. एंड पेशेंट सर्जरी के टाइम हमसे बात करते रहेंगे. सो दे विल दे कैन बी डिस्चार्ज ऑन द सेम डे और द नेक्स्ट डे. एंड 6 मिलीमीटर्स और 7 मिलीमीटर्स का स्कोप में आपको टांग का वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है. देयर इज़ नो सूचरिंग. सो सूचर का इन्फेक्शन होता है नहीं है, एंड देन बोन कट करते नहीं हैं, एंड मसल कट करते नहीं हैं. सो ये सब चीज़ों से, एंड पेशेंट का क्या होता है एनेस्थीसिया देने के बाद, वो भी डर नहीं है, क्योंकि पेशेंट कॉन्शियस रहता है, सर्जरी करते रहते हैं. तो हम उनको बोलते हैं पैर हिलाओ, हाथ हिलाओ, दर्द कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब. सो ऑल दिस थिंग्स ऑफ द डिसएडवांटेज जो ओपन सर्जरी के थे, वो सब इसमें हम निकाल सकते हैं. एंड कुछ लोगों में स्पेशली दिस इज फॉर द यंगर पीपल. फॉर ओल्डर पीपल समझ लीजिए, ओल्डर पीपल में भी डिजनरेटिव स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, उसमें इन लोगों में क्या होता है, हड्डी बड़ा होके एंड देन बिकॉज ऑफ एज एंड वो कंप्रेशन कॉज करके नर्व को, एंड दे विल हैव डिफिकल्टी इन वॉकिंग, कुछ दूर भी नहीं चल पाते, झंझनाहट होता है. सो वैसा लोगों में पहले क्या होता था, ओपन करके पूरा बोन को जो ओवरग्रो हो गया एंड उसके साथ नानोलोन को भी निकाल के स्क्रू रड डाल के फिक्स करते थे. अभी एंडोस्कोपी से क्या होता है, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है. जैसा स्कोप डालो, पूरा जो हड्डी या डिस्क का जो भी ओवरग्रो हो गया उसको निकाल दो. एंड वी आर नॉट कटिंग मसल हियर. ऑलरेडी यंग ओल्ड पीपल में क्या होता है, ऑलरेडी उन लोगों का मसल मास बिकॉज ऑफ एज कम होता है, तो वी डिस्ट्रॉइंग सम मसल विथ ओपन सर्जरी. सो और मसल मास कम होके उनका पेन कुछ लोगों में ज़्यादा होने का रिस्क रहता है. सो एंडोस्कोप में क्या होता है, जस्ट लाइक दैट वी डोंट कट एनी मसल, वी जस्ट गो टू द बोन विच इज कॉजिंग ट्रबल और डिस्क विच इज कॉजिंग ट्रबल, एंड वी कैन यूज ड्रिल एवरीथिंग, एवरी इक्विपमेंट थ्रू एंडोस्कोपी. इतना छोटा इसमें से हम पूरा इक्विपमेंट यूज़ करके विदाउट कटिंग वी कैन डू. एंड इन सच पीपल आल्सो, ऐसे लोगों में भी 1 दिन में 2 दिन में डिस्चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ओल्ड पीपल के पास भी दे हैव नो लग्जरी दैट दे विल बी समवन टू टेक केयर ऑफ देम. जैसा हमारे घर में बुजुर्ग होते थे, उनको सेवा करने के लिए बहुत लोग होते थे. नाउ दिस आर न्यूक्लियर फैमिलीज, एक बच्चा जो 1-2 बच्चे एंड उसका माँ बाप, बाकी उनके माँ बाप का तो कोई देखने वाला नहीं है. तो उनका जब मरते तक वो तो अपना काम अपना करना पड़ेगा. सो इट्स नॉट लाइक आपने ओपन सर्जरी कर लिया, 3 महीना वो बिस्तर में पड़े रहेंगे, कौन सेवा करेंगे उसको, ये भी है. सो बिकॉज आई एम नॉट टेलिंग फ्रॉम माई साइड दिस थिंग. पेशेंट आप अपने आप पूछते हैं, डॉक्टर साहब घर में 2 ये बुजुर्ग, मैं और मेरा पति, आप सर्जरी करेंगे, 3-4 महीना मैं बिस्तर में रहूँगी, तो फिर कौन मेरा सेवा करेगा. तो फ्रॉम सच थिंग्स evolved a technique called endoscopy. एंडोस्कोपी में पेशेंट 1-2 दिन के लिए सपोर्ट से चलते हैं, और उसके बाद एटलीस्ट अपना काम अपना कर सकते हैं. वॉशरूम जाने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए कोई किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होता है. सो विद दीज थिंग्स, जो बिकॉज एज ग्रुप का जो स्पाइन सिम्टम्स में होता है, जिनमें जो पॉपुलेशन है उनका चेंज हो गया, एंड ओल्डर पॉपुलेशन का भी डिमांड्स बदल गया बिकॉज ऑफ द changed family structure and changed society of India. So ऐसे लोगों में एंडोस्कोपी एक वरदान बोल सकते हैं. ओके, सो सर एंडोस्कोपी में जैसे आपने बोला लाइक देयर आर सम पीपल हु गेट डिस्चार्ज इन द सेम डे और लाइक द अदर डे 2-3 डेज में, तो फिर इसका व्हाट्स द रिकवरी ड्यूरेशन, लाइक कंप्लीटली द पर्सन इज रिकवरिंग फ्रॉम द स्पाइनल डिजीज. या जैसा मसल को कट करते नहीं हैं, बट लेकिन जो अंदर का जो प्रॉब्लम है, जो भी उसको हीलिंग होने में 1-2 हफ्ते तो लगेंगे ही.
सो दिस इज़ अनदर मेजर प्रॉब्लम विच आई फेस इन यंगर पीपल. उनका तो निशान जो सर्जरी का है वो दिखता नहीं है, कट होता नहीं है, एनेस्थीसिया दिया नहीं जाता है, उनको लगता ही नहीं है हमने सर्जरी किया है. तो क्या करते हैं, दूसरा दिन तीसरा दिन अपने दोस्तों को लेके मॉल में चला गया, कोई ऐसा सफ़र करने चला गया, कोई टूर में चला गया. ऐसा नहीं होता है. सो दैट्स व्हाई वी काउंसिल देम. सो जो बाहर से छोटा दिख सकता है, अंदर तो काम हुआ है, तो उसको वी हैव टू गिव टाइम फॉर इट. एंड स्पेशली द पीपल, व्हाट द पीपल नेग्लेक्ट इज द प्रिवेंशन. जो आ गया ठीक है, एक बार निकाल दिया दोबारा नहीं आएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है. इस लेवल में शायद नहीं आया, दूसरे लेवल में आ सकता है. असल कारण क्या है, उसको क्यों आया है, दैट्स अ प्रॉब्लम है. व्हाई इट इज़ अफेक्टिंग यू, तो कुछ तो है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आया है. सो वही प्रॉब्लम ऐसे ही बना रहता है तो दोबारा भी आ सकता है. सो वी हैव टू एड्रेस द मेन इश्यू. सो मेन इश्यू क्या होता है, आपका मसल्स का वीकनेस है, आपका डाइट का प्रॉब्लम है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, स्मोकिंग हैबिट्स है, क्या है वो चेंज करके, आप एक्सरसाइज करके, फिजियोथेरेपी करके, एंड विद डिसिप्लिन इफ़ यू लिव, देन द रिकवरी विल बी गुड एंड द प्रॉब्लम विल नॉट कम बैक. मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, एक बार सर्जरी किया तो बहुत लोग बोलते हैं दोबारा आता है, सर्जरी करना ही नहीं करना है. सो द क्वेश्चन, आंसर इज दिस. आंसर क्या है उसका, असल में फर्स्ट में क्यों आया है, फर्स्ट क्यों आया, सब में नहीं आ रहा है ना, कुछ लोगों में आ रहा है, क्यों आया, कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से आया है. तो उसको पहचान के एंड देन ट्राई टू प्रिवेंट इट सो दैट इट विल नॉट कम बैक अगेन. एंड यू शुड इनकलकेट सम हेल्थी हैबिट्स. वो नहीं करेंगे केवल सर्जरी से, सर्जरी एक बार हो गया ठीक है, मैं पुराना ज़िंदगी में चले जाऊंगा, मैं अपना ऐशी करूंगा, अपने हिसाब से करूंगा, तो दोबारा प्रॉब्लम आ सकता है. So, sir, as you are also a brain surgeon specialist, so like अभी आपने पहले बोला हुआ था like about the brain tumor. So, like what are the minimal symptoms that we usually like we don't give importance to those symptoms जो आपका initial symptoms हो सकता है for brain tumor, like any such symptoms like that? सो ब्रेन आप देखेंगे, जैसे हम पहले बात किए थे, ब्रेन ऐसा बना हुआ है, तो ब्रेन इज़ द मेन थिंग फॉर ह्यूमन लाइफ का. सो ब्रेन काम नहीं करता है तो ये बॉडी बोलते हैं, इसको ह्यूमन नहीं बोलते, है ना. सो ब्रेन मेक्स यू ए ह्यूमन बीइंग, ब्रेन मेक्स योर बॉडी ए ह्यूमन बीइंग. सो उसमें क्या ऐसा है जो उसको, एक बॉडी को इंसान बनाता है. सो इट कंट्रोल्स डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक हैंड मूवमेंट्स, द वे आई एम टॉकिंग, द वे यू आर टॉकिंग, द वे यू आर सीइंग. एक बार ब्रेन नहीं काम करता है तो आप जो देखते हैं वो क्या देखते हैं, उसको कैसा रेस्पॉन्स होना है, सो मेमोरी है, सो ये सब ब्रेन का फंक्शंस है. इट्स जस्ट लाइक योर CPU, मोर देन CPU. सो इट्स मोर पावरफुल देन CPU ऑफ एनी कंप्यूटर. सो जो सुनते हैं, क्या सुन रहे हैं, इसका कैसा रेस्पॉन्स देना है, इसको मेमोरी कैसा रहता है, सो मेमोरी में स्टोर करना, उसको फिर इतना फास्ट रिप्लाई देना. सो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल डिफरेंट फंक्शंस. अलग अलग जो ब्रेन में एक स्ट्रक्चर नहीं है, वो देर आर मेनी लोब्स लाइक फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पेरिटल लोब, अंदर वाला भाग होता है, सो इनसाइड थैलेमस. सो देर आर मेनी स्ट्रक्चर्स इन द ब्रेन. सो एक स्ट्रक्चर का अपना अपना फंक्शन है, एंड ये साथ मिलके दे हैव कनेक्शंस इनसाइड द ब्रेन. सो ये साथ मिलके हमको एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट देते हैं. मतलब जैसे आप चलते हैं, सो एक कदम आगे लगा के फिर उसके बाद ये पीछे वाला पैर सामने आएगा. सो दिस इज ए कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट. सो ये कोऑर्डिनेशन के लिए एक हिस्सा ब्रेन का एक हिस्सा अलग अलग काम करेगा तो वो नहीं हो सकता. सो दे कंबाइन, दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन. सो दैट इज द ब्रेन. सो इसमें कोई भी फंक्शन में प्रॉब्लम आता है, देन यू विल हैव सिम्टम्स, लेट मी से. सो एंड अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द ब्रेन इज, ब्रेन का जो बोन है, स्कल बोन, ये रिजिड स्ट्रक्चर है. ब्रेन तो सॉफ्ट है, ये रिजिड स्ट्रक्चर, इधर एक्सपेंड होने का जगह नहीं है. सो कोई नया चीज़ उसमें घुस जाता है, सो देन देयर कैन बी प्रॉब्लम्स इनसाइड द ब्रेन. सो व्हाट आर द मोस्ट कॉमन थिंग्स, जैसे मान लीजिए एक ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो ट्यूमर हो गया तो वो बढ़ रहा है. सो बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ेगा, स्कल तो उसको प्रिवेंट करेगा, उसको बढ़ने नहीं देगा. तो वो क्या करता है, यदि ट्यूमर बढ़ता है तो दिमाग को प्रेस करते हुए बढ़ता है. ओके. सो दिमाग को डैमेज करते हुए बढ़ता है. सो फर्स्ट कंप्लेंट यू विल गेट एज हेडेक होता है, बहुत तेज हेडेक होना, धीरे धीरे हेडेक होना, एंड उसके साथ साथ वॉमिटिंग्स, बिकॉज वो प्रेशर बढ़ रहा है दिमाग में, क्योंकि उसमें जो नया चीज़ का जगह नहीं है, एक नया चीज़ घुस गया उसमें, सो प्रेशर बढ़ता है. सो प्रेशर बढ़ने से वॉमिटिंग्स होना, एंड देन जो एरिया ये ट्यूमर की वजह से डैमेज हो रहा है वो सिम्टम्स होते हैं. जैसे मान लीजिए
हाथ पैर का एरिया में ट्यूमर आ गया तो वो डैमेज कर रहे हैं हाथ पैर एरिया को, सो यू कैन गेट पैरालिसिस लाइक थिंग्स। अच्छा। एंड वो नज़र कंट्रोल करने वाले एरिया में आ गया तो नज़र कमज़ोर हो जाता है। स्पीच एरिया में आ गया तो फिर जबान लड़खड़ाता है, आप बात नहीं कर पाते हैं। सो ये कुछ लोग कंफ्यूज भी होते हैं, एक पैरालिसिस टाइप भी सिम्टम्स है, समझ रहे हैं ना। सो इट कैन लाइक एनी सिम्टम्स जो जिस एरिया के ब्रेन में ये डैमेज हो रहा है उस एरिया के हिसाब से सिम्टम्स आते हैं। एंड कुछ लोग फिट्स के साथ भी हमको मिल सकते, मतलब फिट्स आया, फिट्स मिर्गी आता है, सो मूवमेंट्स आते हैं क्योंकि ट्यूमर की वजह से ट्यूमर अगल बगल के जो दिमाग को इरिटेट करके वो सीजर्स टाइप हो सकते हैं। सो हेडेक होना, दिस आर नॉट स्पेसिफिक सिम्टम्स टू एनी ब्रेन ट्यूमर, ये जनरलाइज सिम्टम्स है, जो दिमाग में जो भी प्रॉब्लम होता है सो ऐसे सिम्टम्स ही आते हैं। बट लेकिन ब्रेन ट्यूमर्स के सिम्टम्स का अहमियत यह है कि ये प्रॉब्लम होके धीरे 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 बढ़ता जाएगा। जैसे पैरालिसिस का आपका सिम्टम्स सोच लीजिए, लकवा होता है तो कैसा होता है, सडनली पैरालिसिस हो जाता है, सडनली ये सब बात करते करते पैरालिसिस हो जाता है। सो उठते हैं तो पैरालिसिस के साथ उठते हैं। ट्यूमर्स में ऐसा नहीं होता है। ट्यूमर क्योंकि उसका साइज जितना बढ़ता रहेगा सिम्टम्स उतने बढ़ते रहेंगे। सो पैरालिसिस धीरे धीरे बढ़ेगा, जो स्पीच में प्रॉब्लम धीरे धीरे आएगा या फिट्स होएगा। सो ये ब्रेन ट्यूमर का जो सिम्टम्स है वो टाइम देते हैं, बताते हैं कि कुछ जो प्रॉब्लम हो रहा है, इनका मेमोरी डिस्टर्बेंसेस धीरे धीरे हो रहा है, सो भूल जा रहा है, कुछ तो अनाप शनाप बात कर रहा है, जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहा है, या हाथ पैर में धीरे धीरे कमजोरी बढ़ रहा है। सो दिस सिम्टम्स विल बी ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव सिम्टम्स बोलते हैं, सो बढ़ने वाला सिम्टम्स होते हैं। सो अब वैसा लोगों में ट्यूमर होने का चांस है। सो ये अर्ली सिम्टम्स ऐसा हो रहा है स्पेशली अडल्ट्स में, तो फिर उसको इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट कराने में भलाई है, क्योंकि द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ एनीथिंग, सो ट्यूमर होने दीजिए, कुछ भी होने दीजिए, उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, सो डेफिसिट हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो जैसे आपने बोला लाइक अ सिम्पटम इज हेडेक, सारा हेडेक ब्रेन ट्यूमर तो नहीं होते, लाइक सो फिर हाउ टू डिफरेंशिएट? सो जो हेडेक्स होते हैं, दिस इज अनदर मोस्ट कॉमन कंप्लेंट दीज डेज। अगेन व्हाट आर द रीजंस फॉर द हेडेक? सो हेडेक का देखेंगे तो अभी यंग चिल्ड्रन, जैसे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, 3rd क्लास 4th क्लास बच्चों में भी हेडेक देखने को हो रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर ऑफ द ब्लू लाइट, मोबाइल के एक्सपोजर की वजह से। एंड देन नींद ढंग से नहीं होने की वजह से, आप बच्चे देखेंगे आजकल के बच्चे 12-1 बजे तक भी वो जागे रहते हैं, एंड सुबह जो लेट उठते हैं। एंड देन खाना ये जो खा रहे हैं, सो कैफीन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड इन द स्टार्टिंग, कैफीन प्रोडक्ट्स, एंड देन अगेन and smoking like habits and all these things, and chocolates, excessive chocolate consumption, so ये सब जो है ना, so these are increasing the risk of headache in young people. So and females में आप देखेंगे तो हार्मोनल imbalance होके, so estrogen progesterone imbalance से, and then obesity again, the weight gain जो adipose tissue होता है वो हार्मोन्स को estrogen में कन्वर्ट करता है, so excessive hormone causing the pressure, increased pressure inside the brain and causing headache. So mainly again the headache is also a lifestyle related symptom now because of the lack of physical activity and the dietary habits. Main thing to play a role in headache are the dietary habits. क्या खा रहे हैं, preserved foods खा रहे हैं, so जो भी fast food जैसा चीज़ें, so they have many chemicals which will trigger your headache. So this diet हो गया, and the lack of sleep हो गया, एक lack of sleep and excessive mobile exposure and all these things, and excessive noises and flickery lights, जो party areas में जो flickery lights होते हैं, and all these things are the migraine triggers and hormone and headache triggers basically. So this headache, the most common headache these days is the प्राइमरी हेडेक, और उसको हम प्राइमरी हेडेक्स में मोस्ट कॉमन हेडेक है माइग्रेन हेडेक। अगेन माइग्रेन हेडेक का बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, एक साइड आ सकता है, वॉमिटिंग्स हो सकते हैं, डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं। सो हाउ टू डिफरेंशिएट ए प्राइमरी हेडेक फ्रॉम ए सेकेंडरी हेडेक? सेकेंडरी हेडेक यानी कोई वजह से हो रहा है, वजह यानी जो ट्यूमर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, सो कुछ क्लॉट हो गया, सो उसकी वजह से आता जो हेडेक आता है उसको सेकेंडरी हेडेक बोलते हैं। एंड ब्रेन में कोई स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी, लाइक ट्यूमर नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हेडेक हो रहा है जी, चीज़ को प्राइमरी हेडेक बोलते हैं। प्राइमरी हेडेक में MRI एंड ये सब नॉर्मल रहते हैं, सो इसमें कुछ फाइंडिंग नहीं निकलता है, मतलब स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हेडेक हो रहा है, सो दैट वी कॉल एज प्राइमरी हेडेक। उसमें माइग्रेन इज द मोस्ट कॉमन टाइप, अदर टाइप्स है क्लस्टर हेडेक, टेंशन हेडेक बोल के, बट माइग्रेन इज द मोस्ट कॉमन थिंग, जिसके बारे में हम अब इतना देर से हम बात कर रहे थे, क्या वजह हो सकता है माइग्रेन हेडेक का। सो इन लोगों में सेट पैटर्न होता है, बहुत लोगों में, ऐसा नहीं कि सब में ऐसा ही हो, सेट पैटर्न होता है। जब भी हेडेक आता है उनको समझ में आ जाता है दिस इज़ द ट्रिगर
फॉर माई हेडेक। एंड देन जो हेडेक का स्टाइल होता है वो भी नॉर्मली इट्स नॉट लाइक फुल प्रूफ ऐसे ही होना है। बहुत सारे हेडेक जो एपिसोडिक होते हैं उन हेडेक का पैटर्न होता है, जैसा फोटोफोबिया से लाइट देख नहीं सकते, साउंड नहीं सुन सकते, कुछ लोगों में काम भी करना मुश्किल हो जाता है, वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, कुछ लोगों में वॉमिटिंग हो जाता है, कुछ लोगों में नज़र कमजोर, ऐसे अलग अलग सिम्टम्स, ये सेट पैटर्न होता है एंड स्पेसिफिक पीरियड्स में आता रहता है, मतलब हफ्ते में 1 बार 2 बार जो भी ट्रिगरिंग इवेंट होता है उसकी वजह से आता रहता है। बट दिस सिम्टम्स विल नॉट बी प्रोग्रेसिव अलॉन्ग विद, जैसे मान लीजिए माइग्रेन हेडेक में जिनको नज़र कमज़ोर हो गया, सो धुंधला दिखने लगा, वो हेडेक खत्म होते हुए विजन नॉर्मल हो जाता है। सो बट लेकिन इधर ट्यूमर वगैरह होता है तो उन लोगों में ये डेफिसिट जो है वो बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि फुल प्रूफ है, बट लेकिन ऐसा ही होना ऐसा नहीं है। बहुत लोगों में जो ट्यूमर और कुछ सेकेंडरी हेडेक्स होते हैं जिसमें जो डेफिसिट्स होते हैं वो प्रोग्रेस होते रहते हैं। एंड जो नज़र भी, कुछ ट्यूमर्स क्या करते हैं ब्रेन में प्रेशर बढ़ा करके सो उसका आंख का रोशनी कम हो जाता है, जैसा दे लूज विजन, बट दैट विल बी प्रोग्रेसिव। इट्स नॉट लाइक एपिसोड हेडेक के साथ आया फिर नॉर्मल हो गया, ऐसा नहीं रहता है। कुछ लोगों में हो सकता है बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ऐसा ही होता है। एंड अलॉन्ग विद दैट इट विल कॉज वॉमिटिंग्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हेडेक ट्यूमर का होता है वो वॉमिटिंग्स होते हैं उन लोगों में, हर बार वॉमिटिंग्स होते हैं। वॉमिटिंग होने के बाद थोड़ा सा हेडेक कम होता है। एंड माइग्रेन लोग भी कुछ लोग हेडेक वॉमिटिंग्स करते हैं, बट दिस वॉमिटिंग्स आर लिटरली डिफरेंट। दिस लाइक थंडर क्लैप हेडेक, मतलब जैसा बहुत ज़्यादा हेडेक हो के वॉमिटिंग हो गया एंड उसके साथ फिट्स आ रहा है एंड और कुछ पैरालिसिस टाइप मैनिफेस्टेशंस हो रहा है जो प्रोग्रेस हो रहा है। सो वैसा लोगों में ट्यूमर होने का चांस ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं बहुत सालों से स्पेसिफिक पैटर्न है, जैसा मान लीजिए आज हमने सोया नहीं ढंग से, कल से हेडेक शुरू हो जाता है। सो ये सेट पैटर्न होता है। सो दिस आर मोस्टली नॉन डेंजरस एंड प्राइमरी हेडेक्स विच आर माइग्रेन हेडेक्स। उसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, द फर्स्ट पॉइंट ऑलवेज अगेन हियर इज प्राइमरी हेडेक्स में पहचानना है क्या कारण है जो हेडेक ट्रिगर कर रहा है। सो उसको पहचान के एंड इफ यू ट्रीट इट अकॉर्डिंगली, मेनी टाइम्स वी नीड नॉट मेडिकेशन ऑल्सो। So these migraine headaches are not like dangerous or these things. All headaches are not tumor headaches. In fact, I say 99% of the headaches are not tumor headaches or any secondary headaches. They are primary headaches. And but at the same time, many tumors can present as headache. That is a very small fraction of headache people. सो बट डेंजर साइंस देखना पड़ेगा। सो जैसा हम डिस्कस किए थे डिटेल, सो यदि ये चीज़ें हैं तो फिर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम ब्रेन में हो। सो वॉट एवर सेड एंड डन दीज डेज, व्हाट वी एडवाइज इज इफ द हेडेक इज परसिस्टेंट फॉर लॉन्ग, बहुत दिन से हो रहा है एंड ट्रबल कर रहा है, तो फिर इन्वेस्टिगेट कराने में ही भलाई है। उससे डर के क्या निकलेगा बोल के नहीं कराना, दिस इज नॉट एन एडवाइजेबल थिंग। सो MRI या CT वॉट एवर इज नीडेड डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल एग्जामिनेशन। हम है स्पेशलिस्ट के पास आएंगे तो वो एडवाइज द ट्रीटमेंट स्कैन्स। और बहुत लोग सोचते हैं ऐसे ही डॉक्टर लोग हैं एडवाइस कर लेते हैं, सो MRI एडवाइस कर लेते हैं, बेफुजल कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। सो वी एग्जामिन क्लिनिकली बिकॉज वी हैव टेक्नोलॉजी दीज डेज, सब चीज़ के लिए ट्रीटमेंट्स है बहुत चीज़ों के लिए। सो यदि पहचानेंगे अर्ली तो फिर हम डेफिसिट प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसा हमने बोला, सो ब्रेन ट्यूमर यदि है तो एक पार्ट ऑफ द ब्रेन को डैमेज कर रहा है, सो वो डैमेज हुआ ब्रेन जो वापस नहीं आएगा। छोटा ट्यूमर होता है तो बहुत छोटा पार्ट ऑफ द ब्रेन डैमेज होता है तो नुकसान हमको नहीं दिखेगा एंड यू कैन कैरी आउट योर नॉर्मल लाइफ। वही ट्यूमर जैसा साइज बढ़ गया, सो बहुत सारा उसका आजू बाजू का दिमाग खराब हो गया, सो डैमेज हो गया, तो आप ट्यूमर निकालेंगे भी तो डेफिसिट तो रहेगा। सो द थिंग इज द आइडेंटिफिकेशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिस डे। सो ऐसा सिम्टम्स हो रहा है तो डरना नहीं है डॉक्टर के पास जाने के लिए। सो जाना है, इफ़ रिक्वायर्ड क्लिनिकली एग्जामिन करके जो भी टेस्ट एडवाइस करते हैं वो कराने में ही भलाई है, जो भी ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर विद दिस एज एंडोस्कोपिक ब्रेन सर्जरीज, सो उसका प्रोसेस एंड रिकवरी ड्यूरेशन वो कैसा होता है? जैसा हम ट्यूमर्स का एडवांसमेंट्स अभी बात कर रहे थे, ट्यूमर्स का होने दीजिए, आप ब्रेन सर्जरीज का होने दीजिए। So along with I will not only pertain to endoscopy here, there are many things here which has revolutionized brain surgeries, like एक माइक्रोस्कोप हो गया, नेविगेशन। सो पहले क्या होता था, MRI देख के हमको ब्रेन में, हमारे ब्रेन में उनका ब्रेन को इमेजिन करना होता था, इधर ट्यूमर हो सकता है बोल के। सो उधर ओपन करके उसके कभी कभी गलत भी हो गया तो फिर बड़ा ओपन करने की ज़रूरत पड़ता था। बट लेकिन नॉट दिस डेज, वी हैव नेविगेशन मशीन्स, न्यूरो नेविगेशन बोलते हैं उसको। जो भी MRI निकलता है सो उसको मशीन में फीड कर लेते हैं। सो मशीन विल हमको उसको जो इंफ्रारेड होता है एंड देन वी हैव ए कोऑर्डिनेशन। सो ब्रेन में हमारा जो पेशेंट का ब्रेन होता है उसको मैप करते हैं along with the machine. So CT scan, MRI and with this coordination it will tell exactly where is the tumor.
तो आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. सो एग्जैक्टली उधर बता दिया, तो बहुत बड़ा ओपन नहीं करते हैं, छोटा सा ओपन करके वी कैन डू द सर्जरी. एंड कुछ ट्यूमर्स में निकला है कि नहीं निकला है कैसा पता लगेगा, कुछ ट्यूमर्स अंदरूनी होते हैं, सो वी मे नॉट बी एबल टू रिमूव इट कम्प्लीटली. वैसा लोगों में भी वो नेविगेशन यूज़ करके हम देख सकते हैं कि ट्यूमर अंदर और भी बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है. एंड ड्यूरिंग सर्जरी वी कैन डू अल्ट्रासाउंड ऑल्सो. ट्यूमर्स का भी ब्रेन के ऊपर अल्ट्रासाउंड करके हम देख सकते हैं कि ट्यूमर निकला है कि नहीं निकला है, पूरा निकल गया है कि नहीं हुआ है. सो दिस इज़ एन इंट्रा ऑपरेटिव अल्ट्रासोनोग्राफी. सो इंट्रा ऑपरेटिव MRI, आजकल हमको यशोदा में MRI मशीन भी है, ऑपरेशन थिएटर में MRI होता है. अच्छा. सो हम ऑपरेशन के टाइम MRI करा के देख सकते हैं कि ट्यूमर निकल गया कि नहीं निकल गया, सो इधर कुछ बचा हुआ है और कहाँ कहाँ एरियाज में है. सो एंड ऑल दीज थिंग्स हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड एंड made the surgery very safe. And along with that there are other machines like हार्ट ट्यूमर होता है तो क्यूज़ा बोलते हैं वो इंस्ट्रूमेंट, हमको ट्यूमर को कट करने की ज़रूरत नहीं है. सो अल्ट्रासोनिक एस्पिरेशन, अल्ट्रासाउंड से वो एस्पिरेट करता रहता है ट्यूमर को. सो ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा चाकू लगा के ट्यूमर काटने की ज़रूरत नहीं है. सो इवन हार्ट ट्यूमर्स. So these machines have made our life easier for a surgeon and safer for the patient. Patient का सेफ्टी बढ़ गया है. एंड जैसा हमसे आपसे बात कर रहा था इंट्राऑपरेटिव मॉनिटरिंग, जब हम एपिलेप्सी सर्जरी फिट्स के लिए भी सर्जरी करते हैं हम. सो वैसा लोगों में वो जो फिट काज करने वाला एरिया जो होता है उसको निकालते हैं तो फिट्स रोक सकते हैं. सो पूरा निकल गया है कि नहीं निकल, क्योंकि बचा होता है तो सर्जरी के बाद भी उसको फिट्स पड़ सकते हैं. सो फिट्स को हम रीजनरेट कर सकते हैं ऑपरेशन थिएटर में, स्टिमुलेट करके क्या क्या एरिया से फिट्स आ रहे उसको देख सकते हैं. फिट्स आ रहे हैं क्या, पूरा रुक गया कि नहीं रुक गया, मतलब फिट्स पेशेंट को नहीं महसूस होता है, हमारा EEG मशीन में, इंट्रा मॉनिटरिंग मशीन में दिखता है यस फिट्स आ रहा है तो एरिया निकला नहीं है तो उसको निकालना है. सो ऑल दीज थिंग्स इंट्रा मॉनिटरिंग होने दीजिए. एंड देन अवेकन एनाटॉमी, जैसे हम पहले बात किए थे, सो पेशेंट को कॉन्शियस स्टेट में रख के सर्जरी करना, स्पेशली एलंक्वेंट एरियाज बोलते हैं ब्रेन में. सो अहम हिस्से जैसा आपका हाथ का, पैर का, एंड देन बोलने वाला एरिया एंड ऑल दिस विजुअल एरिया एंड ऑल दिस थिंग्स, जो जिस एरिया में ट्यूमर होता है तो उस एरिया में हम पेशेंट को अवेक रख के, कॉन्शियस रख के वो काम कराते हुए हम सर्जरी कर सकते हैं. सो ऑल दिस थिंग्स हैव रिवोल्यूशनाइज्ड ब्रेन सर्जरी बाय मेनी फोल्ड्स. एंड हम आजकल हमको यही कि माइक्रोस्कोप में नेविगेशन इंटीग्रेशन आ गया है. एंड देन वी हैव रोबोटिक्स, स्पेशली यशोदा वी हैव रोबोटिक है, रोबोट नेविगेशन से इंटीग्रेट करते हैं एंड रोबोट विल टेल यू व्हाट यू हैव डन, अच्छा हो गया कि नहीं हुआ है. सो ऑल दीज थिंग्स दे हैव एनहांस्ड द सेफ्टी ऑफ the brain surgery. And such some conditions like intraventricular tumors, वैसा लोगों में स्मॉल होल करके एंडोस्कोपी, जैसा स्पाइन में मैंने बोला एंडोस्कोपी, ब्रेन में भी एंडोस्कोपी करके पूरा ट्यूमर निकाल सकते हैं. नेविगेशन से इंटीग्रेट करके, रोबो से इंटीग्रेट करके इतना स्मॉल ऑरिफिस से हम देख सकते हैं कि पूरा ट्यूमर निकल गया है कि नहीं निकल गया है. सो ऑल दिस इक्विपमेंट हैव मेड द ब्रेन सर्जरीज वेरी सेफ एंड द पेशेंट रिजल्ट जो है वो वी आर नॉट हैविंग टू वरी अबाउट देम मच. सो ऐसा नहीं कि 100% कोई भी प्रोसीजर प्रॉब्लम्स क्रिटिकल होते हैं, बट इट हैड मेड 50-50 सर्जरी इंटू 99% सर्जरी, मतलब 1% रिस्क 99% सेफ. तो फिर आपका ये आफ्टर द सर्जरी उसका रिकवरी ड्यूरेशन वो कैसा होता है फॉर ब्रेन सर्जरी, एनी काइंड ऑफ सर्जरी? एग्जैक्टली. सो रिकवरी यानी व्हाट आर वी लुकिंग एट. सो ब्रेन का जो पार्ट डैमेज हो गया उसको वापस लाना है. तो यहाँ आता है अर्ली डिटेक्शन. जैसे मैंने पहले बोला था, जो परमानेंट डैमेज हो गया वो कैसा रिकवरी होता है, कितना रिकवरी होता है, कितना दिन में रिकवरी होता है, कितना % रिकवरी होता है, वो बताना मुश्किल होता है. सो आइडेंटिफाई अर्ली एंड देन गो विद द ट्यूमर रिसेक्शन और एनी अदर पैथोलॉजी. जैसा हो गया आपको, कुछ लोगों में ब्लीडिंग हो जाता है ब्रेन में, एन्यूरिज्मल ब्लीडिंग बोलते हैं. तो उसमें क्या होता है, वो एन्यूरिज्म जो खून गुब्बारा बन के वो ब्लीडिंग हो जाता है. पहले क्या होता था, उसको ओपन करना ही होता था. सो ओपन करके अभी क्या एंडोवेस्कुलर कर सकते हैं, मतलब जैसा कार्डियक स्टेंट डालते हैं, इन लोगों में भी वायर पास करके उसमें कॉइल भर लेना वगैरह कर सकते हैं. सो बट लेकिन ऐसा लोगों में क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट डिपेंडिंग ऑन, रिजल्ट डिपेंड्स ऑन हाउ अर्ली यू केम, हाउ बैड यू केम. जैसा कोमा में आ गया पेशेंट तो फिर रिकवरी होएगा नहीं होएगा, उसको कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो सब नहीं बता सकते. सो ऐसा लोगों में डेफिसिट कितना होता है उसके हिसाब से हम टेलर करते ट्रीटमेंट. फिजियोथेरेपी, रिहैब में रहना है, फिजियोथेरेपी कराना है, अकॉर्डिंगली मेडिसिन देना है. सो कैसे, सो इट डिपेंड्स ऑन बेसिकली व्हाट इज द डैमेज विच हैज़ ऑलरेडी हैपन. सो हियर कम्स द प्रिवेंटिव केयर एंड अर्ली इंटरवेंशन, जैसा जल्दी उसको टैकल करना.
So, sir, there's a term which is like neurovascular surgery. Like, can you please elaborate a little वही bit? न्यूरोवेस्कुलर सर्जरी जो हम बोल रहे थे, इंटरवेंशन सर्जरी। जैसा पहले, अभी भी सर्जरी का रोल है कुछ चीज़ों में, बहुत चीज़ों में सर्जरी का रोल धीरे धीरे ओपन सर्जरी का। सो वी कैन गो विथ एंडोवेस्कुलर, जैसा उधर कॉइल पास कर, उधर एक कैथेटर पास कर लिया, जो भी वेसल में प्रॉब्लम है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसा विदाउट ओपनिंग। कुछ लोगों में ओपन करना होता है। सो अगेन न्यूरोवेस्कुलर सर्जरी हैज़ ऑल्सो बीन रिवोल्यूशनाइज्ड बाय ऑल दीज मेथड्स। जैसा आप सोच लीजिए, एक ओपन सर्जरी भी करने की ज़रूरत पड़ता है, समझ लीजिए। उनको आजकल हम माइक्रोस्कोप में हमको डाई डाल के हम देख सकते हैं कि एन्यूरिज्म पूरा क्लिपिंग हो गया कि नहीं हुआ है, एंड मॉनिटरिंग, ब्रेन का भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, सो एन्यूरिज्म सर्जरी में। सो ऑल दीज थिंग्स हैड मेड न्यूरो इंटरवेंशन एंड न्यूरोवेस्कुलर सर्जरी ए सेफर सर्जरी। सो हमारे पास अभी बहुत वेपन्स है, मतलब पहले ऐसा नहीं है कि ओपन सर्जरी कर दिया कुछ गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं है। एंडोवेस्कुलर सर्जरी है, so we have many things here, without opening we can do, even after opening we can do it very safely these days। and कुछ लोगों में एंडोस्कोपी के जरिए भी वैस्कुलर सर्जरी कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वॉट एवर, सो जो ट्यूमर्स होने दीजिए या एंडोवेस्कुलर एन्यूरिज्म्स होने दीजिए, एवीएम्स बोलते हैं, आर्टरीवेनस मैलफॉर्मेशंस बोल दीजिए, ऐसा लोगों में देर इज़ वन मोर थिंग कॉल्ड गामा नाइफ। इट इज़ नॉट ए नाइफ, इट इज़ ए रेडियोथेरेपी। सो कुछ लोगों में सर्जरी भी करने की ज़रूरत नहीं है, एंडोवेस्कुलर भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रेडियोथेरेपी दे दो, उनका काम बन जाता है कुछ ट्यूमर्स में। सो देर इज़ एन एडवांसमेंट्स इन न्यूरोसर्जरी लाइक लीप्स एंड बाउंड्स। सो वी हैव मेनी ऑप्शंस, सो विच कैन हेल्प patient come out of that condition in a very good and healthy way. So, as now we have almost come towards the end of our today's episode, what would you like to say to our general public? Like, what are certain preventive measures that they should follow in order to avoid such problems? I'll take time in this. The thing is, the most common complaints in young people, if you go to the spine, it is a back pain, neck pain, and some may land up in surgery. So it can be prevented by simple diet modification, making an exercise a part of your life, and avoid prolonged positioning. एक ही जगह बैठ के don't become couch potatoes, and take a time to move out and move around the place at least for some time and then sit again. And always have a mind of how you are sitting, कैसा बैठ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अजीब सा बैठ के, बेड में बैठ के अजीब सा एंगल्स में आप लैपटॉप देख रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू मेंटेन योर एर्गोनॉमिक्स ड्यूरिंग द वर्क। सो वर्क में आपका पोस्चर कैसा मैनेज हो रहा है वो देखना है। एंड देन पीपल हु आर ट्रैवलिंग, सो ट्राई टू कट डाउन द ड्यूरेशन ऑफ योर ट्रैवल। एंड जब ट्रैवल करते हैं, एंड फॉलो always wear seat belt, because seat belt not only prevents post accidental damage, it can also help make your posture, maintain your posture to the seat. And then do exercises routinely, and then if possible move away from smoking and excessive alcohol consumption and tobacco consumption. So whatever is damaging your spine health, take care of it and get rid of it. That's first thing. The second thing, if you have a problem which is bothering you for long, don't make it a chronic issue. Consult a spine specialist like us, so we'll advise what to do. We'll find the reason and help you to get rid of the condition. Not all the spine conditions are go under surgery. So सब conditions में surgery नहीं करते हैं, जिनमें करना होता है minimal invasive and endoscopic spine surgery भी कर सकते हैं। So हम आपको इधर मदद करने के लिए है, we are not here to damage you. So the specialists, we have much armamentarium with us, we have many weapons with us, so we can tailor our your treatment according to what you are suffering from. When coming to brain, so what are the most common problems young people are suffering from the brain part? It is the headache, which is again a lifestyle related event, a lifestyle related problem. So again the same thing, what you are eating, so what is your physical fitness, and because all these things, obesity and all, they are causing hormone problems and all. So have physical activity as a part of your life. Avoid junk food materials and avoid caffeine products as much as possible. Avoid chocolate consumption, avoid red meat consumption, so or at least get down the red meat consumption. So whatever आपको जो triggers है उसको identify कर लीजिए, lifestyle modify कर लीजिए, ये headaches को आप prevent कर सकते हैं. And the next thing is the stroke in young, which is the most dreaded thing we are seeing these days. Again, this is also
most of the time is lifestyle related because of the stress and then lack of physical activity, excessive smoking and all these things, because sitting is new smoking, is worse than smoking. You are sitting and you are taking mental stress, and then we are having diabetes, early hypertension, which are not controlled. Young people may, if they become hypertensive, they don't accept they are hypertensive, they don't take any medication, so they come to us with stroke. So prevent all these things. You can prevent. This is all lifestyle related. So avoid hypertensions, avoid diabetes by changing your lifestyle. Eat healthy, be healthy, and then even if you get diabetes and hypertension at young age, don't be afraid of it. Try to treat it without medication, with exercises, and try if you are not getting control, because these things take time. Till then you should take medication. You should avoid your hypertension and diabetes. You should control them so that you can prevent the complications associated with it. The most dreaded complication nowadays is a stroke. So be careful, sleep good, eat good, and then if you have problem, consult the specialist and accordingly treat it. And so, like, what are your dates? Like, when are you visiting some Guwahati? Like, if patient want to consult you, like, what are your visiting dates? So I am coming to Guwahati every month for 2 days, on the first Tuesday and Wednesday. So I am here. I follow up my patients whom I operated, and then the new patients also I am seeing for both for the brain and the spine. So I am coming every month on first Tuesday and Wednesday to Guwahati. So, and with this, now today we come towards the end of our today's episode, and it was really grateful having you with us. Thank you so much for giving us your precious time. Thank you so much, It's sir. my pleasure to be here. Thank you. And here we come to the end of our today's episode. Thank you for watching.